ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ PETA ਪਸ਼ੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕਰੂਰਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨੁਕੀਲੀ ਲਗਾਮ ਕਢਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਨ ਲਗਾਮ ਵੰਡ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਧਰਮਵੀਰ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਮਿਰਰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪੀਟਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਐਨੀਮਲਸ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ NGO ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹਾਰਸਿਸ ਦੇ ਲਗਾਮ ਜੋ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਆਇਰਨ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਇੱਕ ਲਗਾਮ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੇਨ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਰਸਮ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪਥੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ NGO ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ? ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਟਸ ਅ ਨਾਨ ਕੋਗਨੀਜ਼ੇਬਲ ਅਫੈਂਸ, ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ DDR ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ DDR ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਲੋਕੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਦ ਤੋਂ ਹੀ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਇਹ ਲੀਗਲ ਹੈ ਕਿ ਇਲੀਗਲ? ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਪੀਟਾ ਦਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਰੂਅਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਨੀਮਲ ਨੂੰ ਪੇਨ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਗਾਮ ਲੱਗੂਗੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅਨਮੂਲਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰੇਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੇਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀਆਂ ਰੇਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ सर, अपना नाम और डेजिग्नेशन? हाँ, मेरा नाम महेश त्यागी है। मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ पेटा इंडिया के अंदर। तो अभी हम जो अमृतसर में पिछले 3 से 4 दिन में हमने 200 स्पाइक बिट घोड़ों में चेंज किया है, और उनको हमने निःशुल्क फ्री में ये प्लेन बिट जो हम लाए हैं अपने साथ दिल्ली से, वो हमने उनको दिया है, और ये वहाँ से जब्त करके हम इधर लाए हैं। सर अभी तक कितना रिकवर हुआ है और कहाँ से रिकवर? जी सर, अभी पिछले 1 महीने के अंदर लगाया। तो हमने चंडीगढ़ से स्टार्ट किया था। चंडीगढ़ में 200 के आसपास हुआ था, मोहाली में 100 और पंचकुला में, और उसके बाद अभी जो अमृतसर के अंदर 200 हुआ है। तो 500 से 600 के करीब अभी हमने रिकवर किया है, और उनको प्लेन बिट हमने निःशुल्क वितरित किया है। सर दोनों में फ़र्क क्या है और नुकसान क्या है? दोनों में फ़र्क ये है कि जो कांटे वाली लगाम होती है, वो अंदर जब उसको रोकते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें जख्म हो जाते हैं। वो कांटे लगे हुए हैं तो जीभ के अंदर जख्म हो जाते हैं, जिससे उसको दर्द और पीड़ा होती है। और इसे प्लेन लगाम में ये है कि क्योंकि घोड़ा ये लगाम जो लगाते हैं इशारे के लिए लगाते हैं, चलाने के लिए, दाएं मुड़ना बाएं मुड़ना है। लेकिन इन्होंने क्या है, एक वो बना दिया है, जब वो रोड पे दौड़ता है तो उसको तेज़ी से रोकने के लिए और उसको डराने के लिए ये इस तरह के कांटे वाली लगाम का इस्तेमाल करते हैं, जो कि वो बहुत वो बैन भी है और वो गलत भी है लगाना इसके लिए। सर आपकी जो संस्था है कब होंद में आई और अभी तक कितने कार्य कर चुकी है, किस तरह के कार्य करती है? देखो, पेटा इंडिया जो है ना, इनके अलग अलग प्रोजेक्ट है। ये एनिमल, हर एनिमल के ऊपर काम करती है, और जहाँ पे भी उसको क्रूरता या उसके अधिकारों की लड़ाई लड़ती है। और इसमें क्या है, ये एक हमारी अलग अलग टीम है, जैसे ERT टीम है, इमरजेंसी रिस्पांस टीम है। जहाँ पे भी एनिमल कहीं बीमार होता है या उसे सूचना मिलती है तो उसको फ़ौरन इलाज भी पहुँचाता है। उसके बाद जो भी बेसहारा जानवर है उसको फूड का सहूलियत करना। उसके बाद कहीं भी एनिमल के ऊपर क्रूरता होती है, कहीं से सूचना मिलती है, तो उसके लिए हम काम करते हैं। सर ये लीगल है या इलीगल है, और अगर ये इलीगल है तो इस पर क्या एक्शन करेंगे, और अभी तक कोई कंप्लेंट दर्ज की है? हाँ जी, ये वैसे इलीगल है, लेकिन इसके लिए क्या है, इसमें एक दो तरह की चीज़ें होती हैं।
तो इसमें जब हम पुलिस के साथ ये हमने जितने भी ये बिट जब्त किया है ये पुलिस के नमस्कार, मेरा नाम नताशा है। मैं पीटा इंडिया से हूँ और वहाँ एडवोकेसी ऑफिसर के तौर पे काम कर रही हूँ। यहाँ हमने आज अमृतसर पुलिस के साथ मिलकर 200 कांटे वाले लगाम घोड़े वालों से हमने जब्त किए हैं और उसे हमने प्लेन लगाम दिए हैं। तो ये जो कांटे वाला लगाम आप देख रहे हो, ये ड्रॉटन पैक एनिमल्स एक्ट 1965 के रूल 8 के तहत इलीगल है, मतलब इसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। पर इसका इस्तेमाल बैन होने के बावजूद भी तादाद में जिस भी घोड़े वाले के पास आप जाओ, उनके घोड़े के मुंह में आपको ये मिलेगा। तो हमने क्या किया है कि इसे रिप्लेस करके हमने ये प्लेन वाले लगाम दिए हैं, जिससे घोड़े के मुंह में कोई चोट ना पहुँचे और कोई क्रूरता ना हो। थैंक यू। इसको मैडम रोका कैसे? हाँ जी, तो हमारी 2 तरह के दरखास्त हैं, एक पब्लिक से है और एक गवर्नमेंट से है। पहले मैं पब्लिक की बात करूंगी। आम जनता से मेरी यही दरख्वास्त रहेगी, पीटा इंडिया की ये दरख्वास्त है कि जानवरों को अपनी शादी में, अपने ज़िंदगी के सबसे खुशहाल दिन में इस्तेमाल ना करें। वो सबके लिए खुशहाल होना चाहिए। एक जानवर को जब आप घोड़े के सामने फॉर एग्जांपल जब आप पटाखे फोड़ते हो या लाउड म्यूज़िक चलाते हो तो उनके कानों में बहुत दर्द होता है, उन्हें बहुत परेशानी होती है। और आप सोचो कि उस दर्द परेशानी में उनके मुँह में ये कांटे वाले लगाम भी होते हैं। तो आप इसलिए किसी जानवर को इस्तेमाल मत करो। आज के कितने सारी सेलिब्रिटीज़ हैं जो बिना जानवर के ही अपनी शादी मना रहे हैं। तो मेरी यही और पीटा इंडिया की यही दरखास्त रहेगी आम जनता से कि वो जानवर इस्तेमाल ना करें। और गवर्नमेंट से ये दरखास्त है और हम ये कोशिश भी कर रहे हैं कि सिर्फ इसका यूज़ बैन ना हो, इसका बनना, बिकना, बेचना बैन हो जाए।